In previous lecture we had completed the exercise 5.1 of chapter vector. Now we will proceed further and we will see for the topics for the exercise 5.2. So very first topic is section formula. So section formula are for internal division as well as for external division. Okay. So first we will see section formula for internal division. For example, there is one point P and other point is Q. Point P and Q. And point R divides segment PQ internally in the ratio m/n. And the position vector of P is P bar, position vector of R is R bar, and position vector of Q is Q bar. Now what is position vector? Position vector is distance of this point from the origin. Okay, so by using the section formula for internal division, what we will write? R bar is equals to m Q bar plus n P bar divided by m plus n. This is section formula for internal division. Point P, point Q, and there is point R which divides segment PQ in the ratio m/n internally. So R bar will be equal to m Q bar plus n P bar upon m plus n. Now next is section formula for external division. सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. अभी इसमें क्या रहेगा? पॉइंट P, देयर इज वन पॉइंट Q. ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज P bar, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज Q bar, and there is one point R which divides segment PQ externally. Okay, that means point R divides segment PQ externally in the ratio. For example, ये वाला रेशियो आएगा M and this ratio is n. Okay, because PQ is main segment, R इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. एक्सटर्नली मतलब स्प्लिट कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं, इन द रेशो m/n. सो दिस इज m एंड दिस इज n. सो सेम आएगा. R बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा m Q बार माइनस n P बार. n P बार यहाँ माइनस में आएगा m माइनस n. ओके, एंड एक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? See here, midpoint formula, that means here there is point P and Q, P, Q, and point R यहाँ पे मिडल में है और ये इक्वल है. that means ratio will be what? 1/1. Equal means ratio will be 1/1. So position vector of this is P bar, position vector of R is R bar, and the position vector of Q is Q bar. So by using section formula, R bar will be equal to 1 times of Q bar plus 1 times of P bar upon 1 plus 1. So what you can say? P bar plus Q bar upon 1 plus 1 will be 2. Okay, so midpoint formula कैसा आ जाएगा? R bar is equals to P bar plus Q bar upon 2. So this is midpoint formula. R is midpoint of segment PQ. So R bar is equals to P bar plus Q bar upon 2. In triangle ABC, if G is centroid, ट्राइंगल ABC में G सेंट्रॉइड है. दिस इज ट्राइंगल ABC. नाउ ट्राइंगल ABC and position vector of A is A bar, position vector of B is B bar, and position vector of C is C bar.
ओके, नाउ व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या रहता है? ये जो मीडियन समझता है कि अपोजिट पॉइंट से मिड पॉइंट को हम लोग जो लाइन ज्वाइन करते हैं, ओके, मीन्स ये इक्वल रहना चाहिए ऐसा, मतलब ए डी यहाँ पे मीडियन है, मीडियन मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट मीडियन इज दिस, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये इक्वल रहना चाहिए दोनों पार्ट्स। ओके, सो ट्राइंगल के तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सो हियर जी इज सेंट्रॉइड हुज पोजिशन वेक्टर इज जी बार। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी जी इज सेंट्रॉइड, सो देर इज रिलेशन जी बार इज इक्वल्स टू होता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3. ओके, G is centroid of triangle ABC, then G bar will be equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3. And definitely centroids divides the median in the ratio 2:1. Centroid divides the median in the ratio 2:1. That means what? AG ratio GD, AG रेशो GD और यहाँ पे BG रेशो GE एंड हियर CG रेशो GF, सबका रेशो क्या रहेगा? 2:1. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाता है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है, ये टेट्राहेड्रॉन का फिगर है इस तरीके से, मतलब बेस उसका ट्राइंगल रहेगा और सब ऊपर आके एक पॉइंट पे सपोज मिल रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है ए और ये नीचे बेस है बी सी डी. ओके, और ये टेट्राहेड्रॉन का एक सेंट्रॉइड है कहीं पे, मतलब ये 3D फिगर है, नीचे ट्राइंगुलर बेस है और ये ऐसे ऊपर आके मिल रहे हैं ए पे. सो ये टेट्राहेड्रॉन है. ओके, ए बी सी डी इज टेट्राहेड्रॉन whose centroid is G. So tetrahedron कैसा आएगा? G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar plus D bar upon 4. ओके, सो ये सब टॉपिक हम लोग को एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होने वाले हैं. सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, and the centroid of triangle and the centroid of tetrahedron. Okay, so now we will start with the exercise 5.2. Exercise 5.2. Now question number 1, find the position vector of point R which divides line joining the points P and Q whose position vectors are 2i minus j plus 3k and next is minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2. फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इंटरनली भी फाइंड करना है एंड सेकेंड 2 क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सटर्नली भी फाइंड करना है हमको. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन. Find the position vector of point R which divides the line segment joining the points P and Q. P and Q के position vectors are given 2i minus j plus 3k minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2. 3:2 इंटरनली एक्सटर्नली दोनों फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्यूशन में फर्स्ट वन कर रहे हैं. सबसे पहले लिखने का लेट P बार Q बार R बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ
पहले हम लोग नोटेशन सब लिख लेते हैं, बाद में इंटरनली एक्सटर्नली देखते हैं. लेट P bar, Q bar, R bar be the position vector of points P, Q, R respectively. Okay, so here P bar is given. What is P bar है ना, position vector of P is given 2i minus j plus 3k, as well as Q bar is also given minus 5i plus 2j minus 5k. Okay, now first हम लोग लिखेंगे, first है point R divides segment PQ. पहला क्या है, internally in the ratio 3:2. तो इसको हम लोग क्या लेंगे, m/n, बराबर. सो therefore by section formula for internal division क्या आएगा, R bar is equals to, ऐसा है ना, सेगमेंट पी क्यू है, पी क्यू, इधर पे R है, करेक्ट, m/n. ओके, सो R bar is equals to m/q bar plus n/p bar upon m plus n. Now what is m here, 3 into what is q bar, minus 5i plus 2j minus 5k. What is n, 2i minus j plus 3k. नीचे आएगा 3 plus 2. 3 5s are 15i cap, 3 2s are 6j cap minus 15k cap, 2 2s are 4i, 2j 6k अपॉन 5. ओके, सो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं. माइनस 15i प्लस 4i क्या हो जाएगा, माइनस 11i, 6 माइनस 2 4j, माइनस 15 प्लस 6 माइनस 9k अपॉन 5. सो R bar is equals to minus 11/5i cap प्लस 4/5j कैप माइनस 9/5k कैप. ये R बार है, करेक्ट. सो पॉइंट R क्या हो जाएगा इसके लिए, माइनस 11/5, 4/5 एंड माइनस 9/5. दैट मीन्स दिस पॉइंट डिवाइड्स PQ इन द रेशो 3:2 इंटरनली. ओके, अभी सेम क्वेश्चन में एक्सटर्नली अभी है ना, तो हम लोग सेकेंड लिखेंगे. Point R divides segment PQ externally in the ratio 3:2. ओके, अभी पॉइंट R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग को पॉइंट R ढूंढ के निकालना है. तो देयरफॉर बाय section formula for external division R bar is equals to, सेम आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा सिर्फ. ओके, सो R bar is equals to m/q bar minus n/p bar upon m minus n. सो m यहाँ पे क्या है, 3. व्हाट इज q bar, माइनस 5i कैप प्लस 2j माइनस 5k माइनस n इज 2, 2i माइनस j प्लस 3k. नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2. ओके, 3 5s are माइनस 15i, 3 2s are 6j माइनस 15k. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j प्लस माइनस माइनस 6k एंड 3 माइनस 2 इज 1. सो R bar is equals to minus 19i and 6 plus 2 8j and this will be minus 21k. So this is R bar. तो R के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे,
-19, 8 एंड -21। यानी जब भी पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड कर रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट ये आ रहे थे, और जब भी पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे थे। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3, 0, P, B -1, Q, 3 and C -3, 3, 0 are collinear, then find, first question, the ratio in which the point C divides the line segment AB। सी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है वो फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ओके, सो विल सॉल्व इट बाय वन। If the points these and these are collinear, point collinear है, it is already given the ratio in which point C divides line segment AB. Okay, so solution, let point C divides line segment AB in the ratio T/1। ओके, T/1 हम लोग ऐसा क्यों ले रहे हैं, M/N क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज अगर हम लोग M/N लेंगे तो हम लोग के पास 2 अननोन आ जाएगा। अब T/1 लेते हैं, अगर T का आंसर 3/2 आ रहा है और रेशो में 1 है, सो आवर रेशो विल बी 3/2 बिकॉज 2 1s are 2 होता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, इंटरनली है एक्सटर्नली है। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इंटरनली होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला इंटरनली का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इंटरनली का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद नेगेटिव आंसर आ रहा है तो फिर मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो T/1। T/1 हम लोग M/N क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज 2 अननोन हो जाएगा। T/1 लेने से एक ही अननोन रहता है। अगर T की वैल्यू 3/2 आ रही है तो आवर रेशो इज 3/2 बिकॉज 2 1s are 2, मतलब ये ऐसा हो जाता है ना 3/2 डिवाइड बाई 1, सो विच इज़ नथिंग बट 3/2 ओनली। ओके, और पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली, नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो T/1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बार, बी बार, सी बार, उसके पोजिशन वैक्टर्स ले लेते हैं। ओके, सो let A bar, B bar, C bar be the position vector. Let A bar, B bar, C bar be the position vectors of points A, B, C respectively. Okay, so what is A here? A यहाँ पे है 3, 0, P, सो A बार विल बी इक्वल टू 3I 0J लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस P K कैप, सॉरी K, एंड B इज़, पॉइंट B इज़ -1 Q3, सो B बार विल बी -I प्लस QJ प्लस 3K, and point C is -330, so C बार क्या आ जाएगा, -3I प्लस 3J प्लस 0K। ओके, सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, C का हम लोग को दिखाना है कि C किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो C डिवाइड्स AB इन द रेशो T/1, हम लोग ये कंसिडर कर चुके हैं ना। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, हम लोग यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी मेंशन अभी नहीं कर रहे। ओके, सो C बार विल बी इक्वल टू, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ये A है, ये B है,
एंड सी डिवाइड कर रहा है इन द रेशो T:1. सो T टाइम्स ऑफ B बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ A बार अपॉन T+1. सो व्हाट इज C बार हियर? -3i प्लस 3j. T टाइम्स ऑफ B बार. B बार क्या है यहाँ पे? -i प्लस qj प्लस 3k प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3i प्लस pk अपॉन T+1. okay, so -3i 3j. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, i वाले जो मतलब कोएफिशिएंट्स है उसको एक साथ रख देते हैं. सो -ti कैप प्लस q टाइम्स ऑफ tj कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ tk कैप प्लस 3i कैप प्लस pk कैप और नीचे आ रहा है T+1. T+1 हम लोग इधर में शिफ्ट कर दे रहे हैं. सो -3i प्लस 3j एंड T+1 हियर. सो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग i वाले सब साथ में रख रहे हैं तो 3 - ti एंड j में एक ही है q t j एंड k लास्ट हम लोग अगर देख रहे हैं तो 3t प्लस pk. ओके, सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3ti. यहाँ अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो -3t+1 टाइम्स ऑफ i कैप है ना. ऐसे हम लोग सिर्फ i और j अलग अलग ही रखने वाले. सो -3t+1 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 3t+1 टाइम्स ऑफ j कैप बराबर. सो 3 - ti कैप प्लस q t j कैप प्लस 3t प्लस pk कैप. थोड़ा अगर हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं -3t - 3i कैप 3t प्लस 3j कैप 3 - ti कैप q t j कैप 3t प्लस pk कैप. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल है तो कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ j एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ k को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप. सो व्हाट यू विल गेट, -3t - 3 इज इक्वल्स टू 3 - t. ये और ये दोनों इक्वल रहेगा. ओके, 3t प्लस 3 इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ t एंड यहाँ पे k का टर्म्स है ही नहीं. दैट मीन्स 3t प्लस p इज इक्वल्स टू 0 है ना. सो अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको t मिल जाएगा. ओके, सो हम लोग पहले इसको नंबर्स दे देते हैं 1 2 3. सो फ्रॉम 1 बाय इक्वेशन 1 -3t - 3 t. सो t वाले टर्म्स हम लोग एक साथ ले रहे -3t प्लस t एंड 3 प्लस 3. सो -2t एंड दिस इज 3 प्लस 3 6. t इज इक्वल्स टू 6 अपॉन -2. सो t इज इक्वल्स टू -3/1. तो t क्या आ रहा है, -3/1. सो T:1 क्या हो जाएगा, T:1 माइनस t/1 होता है ये एक्चुअल में. सो -3/1/1 दैट मीन्स व्हाट, -3/1 और नेगेटिव आ रहा है मतलब ये क्या है, एक्सटर्नली है. देयरफॉर पॉइंट C डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio 3:1. नेगेटिव आया है इसलिए हम लोग को ये वर्ड डालना पड़ रहा है एक्सटर्नली. ओके, सो इस तरह हम लोग को पता चल गया कि पॉइंट C AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बिकॉज रेशो इसका -3:1 आ रहा है. ओके, सो पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो 3:1 एक्सटर्नली. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन इसमें था यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q.
ये हमने फर्स्ट किया हुआ है, अभी सेकेंड में हमको पी एंड क्यू फाइंड करना है। सो पी एंड क्यू कैसे फाइंड करेंगे, टी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 3t plus p is equals to 0. 3, what is t? Minus 3/1 plus p is equals to 0. Minus 9 plus p is equals to 0. So p is equals to 9. q कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 3t plus 3 is equals to q times of t. 3 into minus 3/1 plus 3 q into minus 3/1. So minus 9 plus 3 and this is minus 3q. 3 3s are minus 9 na? So minus 6 is equals to minus 3q. So 6/3 is equals to q. So value of q is equals to 2. Therefore values of p and q क्या क्या आ रहा है, p is equals to 9 and q is equals to 2. Okay, so I hope this question is clear to you. Now we will go for the next question, question number 3. एक बार यहाँ पे t मिल गया था तो हम लोग t सब्सटीट्यूट करके p and q डेफिनेटली निकाल सकते हैं ना. Now see the next question. Prove that the line segment joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral forms a parallelogram. Okay, you have to prove this. Solution or proof. Okay, prove that the line segment joining the midpoint of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. So पहले हम लोग एक quadrilateral बना रहे हैं, हम लोग ये 4-sided figure है quadrilateral. Quadrilateral ABCD. Midpoint of AB is here, for example P. This is Q. इसका midpoint R और इसका midpoint S. Prove that the line segment joining the midpoint of adjacent side of the quadrilateral. Quadrilateral की जो adjacent sides है उसके midpoint joint करके जो बन रहा है वो parallelogram है, ऐसा हम लोग को prove करना है. Parallelogram, that means what? Opposite sides are parallel and equal. So we'll start one by one. Very simple. Let A bar, B bar, C bar, D bar, P bar, Q bar, R bar, S bar be the position vectors of points A, B, C, D, P, Q, R, S respectively. हम लोग ने कंसिडर किया कि ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार, क्यू बार, आर बार, एस बार उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है. सो इसके पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट ए डी रिस्पेक्टिवली. ओके, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से पी बार क्या रहेगा, पी बार विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 एंड क्यू बार क्या रहेगा, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2. ओके, पी बार विल बी, पी बार क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, क्यू बार रहेगा बी बार प्लस सी बार अपॉन 2
आर बार रहेगा सी बार प्लस डी बार अपॉन टू एंड सिमिलरली एस बार क्या रहेगा ए बार प्लस डी बार अपॉन टू. Correct? S bar will be A bar plus D bar upon 2. Now what we want to prove that PQRS is a parallelogram. That means what we have to prove that PQ is parallel to SR और PS is parallel to QR. दोनों में से कुछ एक भी प्रूफ किया तो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली. ओके, सो हम लोग एक ही स्टार्ट करते हैं. PQ लेते हैं. ओके, लेट PQ बार. What is PQ bar? Q bar minus P bar. What is Q bar? B bar plus C bar upon 2 minus what is P bar? A bar plus B bar upon 2. सो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. B bar plus C bar minus A bar minus Q bar is B bar plus C bar. ओके, माइनस B bar ये आया अपॉन 2. प्लस बी बार माइनस बी बार गेट्स कैंसल्ड, तो हम लोग को पता चल गया कि पी क्यू बार इज व्हाट सी बार माइनस ए बार अपॉन 2. इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड पी क्यू के बाद अभी हम लोग उसका अपोजिट ये ले रहे हैं एस आर बार. ओके, सो आर बार माइनस एस बार. नाउ व्हाट इज आर बार? आर बार इज सी बार प्लस डी बार अपॉन 2 माइनस एस बार इज ए बार प्लस डी बार अपॉन 2. So C bar plus D bar minus A bar minus D bar upon 2 plus D minus D cancel. So SR bar is nothing but C bar minus A bar upon 2. Equation number 2. From equation 1 and 2, from equations 1 and 2, what you get? PQ bar, vector PQ bar is equals to vector SR bar. Means what? PQ और SR दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. ठीक है, वेक्टर है ना ये. PQ बार इज इक्वल्स टू SR बार. और दूसरी चीज, PQ इज स्केलर मल्टीपल ऑफ SR. व्हाट इज स्केलर मल्टीपल हियर? 1. कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है. सो पी क्यू इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एस आर बार और यहाँ पे स्केलर मल्टीपल क्या है? 1. तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल रहता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर बार. तो हम लोग को पता चल गया कि पी क्यू और एस आर इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. सो सिमिलरली दूसरा कौन सा है? पी एस एंड क्यू आर. सिमिलरली we can show that QR bar is equals to PS bar and QR is parallel to PS. Therefore, quadrilateral PQRS forms a parallelogram. अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई और इक्वल आ गई तो हम लोग बोल सकते हैं ना क्वाड्रिलेटरल PQRS फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. हेंस प्रूफ्ड. ओके, सो हम लोग ने कैसे स्टार्ट किए? क्वाड्रिलेटरल ABCD में PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स एफ ऑफ ऑल द साइड्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फिर हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले क्या चेक करें? PQ बार और SR बार. तो दोनों इक्वल आ गया. दोनों इक्वल है मतलब स्केलर मल्टीपल है विथ मल्टीपल 1, तो दोनों पैरेलल भी आ जाएगा. सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं. एक प्रूफ किया तो दूसरे को हम लोग सिमिलरली लिख के प्रूफ कर देंगे. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम. हेंस आवर थ्योरम इज प्रूफ. मतलब जो अपना क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया. ओके, सो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4. इफ 2 of the vertices of the triangle are, पहला है A 3 1 4 and B -4 5 -3 and the centroid of a triangle is G -1 2 1, then find the
कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स C ऑफ ट्राइंगल। सो आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया रहेगा। एक ट्राइंगल है ABC एंड G उसका सेंट्रॉइड है। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल ABC। ए क्या है हमारे पास 3 1 4, B क्या है -4 5 -3, C we have to find out, और centroid G is given -1 2 1. So very simple, in triangle ABC, G is centroid. Let A bar, B bar, C bar, G bar be the position vectors of points A, B, C, G respectively. Okay, so in triangle ABC, G is centroid. Let A bar, B bar, C bar, G bar be the position vector of the points A, B, C, G respectively. Therefore हम लोग को पता है रिलेशन बिटवीन ट्राइंगल एंड द सेंट्रॉइड G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3 होता है। ठीक है, सो हियर A is given, A क्या है 3 1 4, तो A बार क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस J कैप प्लस 4k कैप। B इज गिवन -4 5 -3, सो B बार क्या आ जाएगा -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। G is also given -1 2 1, so G bar is equals to -i cap plus 2j cap plus k cap. Okay, so G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3. So what we have to do, we have to substitute the values of G, A and B and find the value of C. So what is G? -i plus 2j plus k. What is A? 3i plus j plus 4k. What is B? -4i plus 5j minus 3k. And you have to find the C upon 3. Okay, so what we had did, we had just substituted the values. Now 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, so this will be 3 minus I प्लस 2j प्लस k, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, करेक्ट। एंड यहाँ पे 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -4i प्लस 5j माइनस 3k। प्लस c, ये हमको फाइंड करना है। ओके, c बार हम लोग को फाइंड करना है। So now see this, this is -3i, 3 2s 6j एंड ये 3k हो जाएगा। ठीक है, 3 - 4 ये आ जाएगा -i, 5j प्लस j 6j एंड ये आ गया k प्लस c। अभी यहाँ पे भेज देते हम लोग -3i प्लस 6j प्लस 3k, तो ये आ जाएगा i माइनस 6j माइनस k इज इक्वल्स टू c। सो c बार इज इक्वल्स टू -3i प्लस i माइनस 2i प्लस 6j माइनस 6j कैंसल, सो 0j एंड दिस विल बी 2k। सो c बार है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आ जाएंगे -2 0 2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के 2 वर्टाइसेस थे और सेंट्रॉइड था, हमको सी फाइंड करना है, तो बस हमको ये रिलेशन का यूज करके सी फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन O A B C is 1 2 -1, सेंट्रॉइड ये है। ठीक है, वेयर A क्या है
A23 मतलब ये अननोन है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 B2, यहाँ पे बी अननोन है, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और यहाँ पे एक सी अननोन है, ओके। रिस्पेक्टिवली find the distance of P, ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट ये ABC है, उसका हम लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। सो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन है OABC, मतलब नीचे ABC है और यहाँ पे एक ऐसा मतलब टेट्राहेड्रॉन समझते हो ना, 3D डायग्राम है जिसमें बेस एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। अभी ABC के कोऑर्डिनेट्स है और इसका जो एक सेंट्रॉइड रहेगा टेट्राहेड्रॉन का, कहीं पे एक सेंट्रॉइड रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओके। सो यहाँ पे ABC के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ABC के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि XYZ कोऑर्डिनेट में से, जैसे पॉइंट A में X कोऑर्डिनेट अननोन है, पॉइंट बी में इसका y कोऑर्डिनेट अननोन है, पॉइंट सी में इसका z कोऑर्डिनेट अननोन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो हमको पता है ये 0 0 0 होते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। लेट g इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, ओके। g हम लोग ने इसका सेंट्रॉइड लिया है। लेट A बार B बार C बार G बार एंड स्मॉल यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग O बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A B C G O रिस्पेक्टिवली, ओके। अभी यहाँ पे A हम लोग को पता है, A है A स्मॉल a 2,3, सो A बार एंड ये स्मॉल a अलग है। A बार क्या है, A का पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे एक अननोन है, मतलब हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो उसकी जगह पे A लिखा हुआ है, समझ रहे। A की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। सो B यहाँ पे है 1, B, -2, सो B बार आ जाएगा I कैप प्लस BJ कैप -2K कैप। C यहाँ पे है 2 1 C, तो C बार आ जाएगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप, और सेंट्रॉइड यहाँ पे है, सेंट्रॉइड है G जो कि लिखा हुआ है 1 2 -1, सो G बार क्या होने वाला है हमारे पास, I प्लस 2J -K। अब एक और पॉइंट है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, तो ओरिजिन का वेक्टर 0 वेक्टर होता है, तो उसको ऐसा लिखते हैं 0I 0J 0K, ओके। सो अभी G बार क्या है, सेंट्रॉइड है। G बार इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC। G इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, so G bar is equals to 0 vector plus A bar plus B bar plus C bar upon क्या आ जाएगा 4। so what is G bar here, I plus 2J minus K, so I plus 2J minus K, ये हम लोग ने G bar लिख दिया। जीरो वेक्टर को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जीरो वेक्टर में सब जीरो है तो उसको हटा ही देते हैं हम लोग। A क्या आएगा यहाँ पे वो लिख देती हूँ मैं, AI प्लस 2J प्लस 3K। B लिख देती हूँ मैं I प्लस BJ प्लस 2K, एंड C लिख देती हूँ मैं 2I प्लस J प्लस CK अपॉन क्या आ जाएगा 4 अभी हम लोग उधर भेज दे रहे, ठीक है। 4I प्लस 2J माइनस K। अब यहाँ पे क्या करो, सब I वाले एक साथ रख दो, क्या क्या जाएगा, ये A है, इसमें क्या है 1 और उधर 2, और ये आया I कैप, A 1 2 I कैप। J में क्या क्या आएगा 2 प्लस B प्लस 1 J कैप, करेक्ट, 2B J, एंड लास्ट 3 प्लस 2 प्लस C K कैप, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ जाएगा 4I कैप, 4 2 8 J कैप माइनस 4K कैप। सो A प्लस 3I, B प्लस 3J, C प्लस 5K,
on comparing coefficients of I, J and K, क्या आ जाएगा? a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, c प्लस 5 इज इक्वल्स टू -4. सो a आ जाएगा 4 माइनस 3, तो a आ गया तुम्हारा 1. b आ जाएगा 8 माइनस 3, तो b आ गया 5. c आ जाएगा -4 माइनस 5, तो ये आ गया -9. सो ये जो तीनों पॉइंट्स थे हमारे पास ए बी सी, इनके अननोन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को हमने फाइंड कर लिया है. बट क्वेश्चन में तुमको कंप्लीट कोऑर्डिनेट ऑफ ए या कंप्लीट कोऑर्डिनेट ऑफ बी या सी कुछ फाइंड करने नहीं बोल रहा है. लास्ट में क्या कर रहा है? ए बी सी को मिला के जो एक पॉइंट बन रहा है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका z कोऑर्डिनेट लेके 3D फिगर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट P बन रहा होगा, कहीं पे भी एक जगह. तो वो पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, मतलब पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए. तो पॉइंट P क्या है मेरा? ABC, यानी क्या? 1, 5, -9. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन. सो ओरिजिन मतलब उसका तो कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस क्या आएगा? √a² प्लस b² प्लस c². सो √1² प्लस 5² प्लस -9². सो 1 प्लस 25 प्लस 81. सो आई थिंक इट इज़ 107. 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7. ओके, हाँ, 107. So this is the required distance of point P from the origin. Okay, question is very simple. टेट्राहेड्रॉन था OABC, G उसका सेंट्रॉइड था. O मतलब ओरिजिन, तो वो 0, 0 रहता है. सेंट्रॉइड का ये रिलेशन रख के हम लोग जो अननोन वैल्यूज़ थी कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C में, वो कैलकुलेट कर लिए. अभी अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, C की अननोन वैल्यू फाइंड करने बोला रहता तो वो फाइंड करके हो गया. लेकिन उसने क्या बोला है कि वो वैल्यूज़ को लेके 3D डायग्राम में एक पॉइंट है P, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस. तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा? √a² प्लस b² प्लस c². ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस है तो हम लोग ऐसे यूनिट्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो अवर एक्सरसाइज 5.2 इज कम्प्लीटेड हियर. मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग ने कवर किए हैं. कुछ सिमिलर सम्स है, वो एज अ असाइनमेंट आपको मिलेंगे. सो उसको आपको टाइम पे सबमिट करना है. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.